Professor Naka, my friend Ranju, and all the people sitting over here. Opera, it's a very difficult subject to talk about. We have to talk and discuss. Unless हम लोग बात नहीं करेगा तो कैसे इसके ऊपर में हम एक conclusion में आएगा. You know what? I've been writing a lot about these things and in paper and in social media maybe, and I've been interacting with a lot of people also and काफी सारा मैंने रैलीज भी देखा रिसेंटली, इप्सॉप का भी रैली देखा, क्वेश्चन फॉर्म का भी रैली देखा, जहाँ पर मतलब एक अगेंस्ट में एक प्रो में और स्टेट में ऐसा लगता है कि अभी बस अपना ही एक मुद्दा है, बाकी कोई मुद्दा नहीं ऐसा लग रहा है लास्ट कुछ समय से. This is where I would like to make my opening speech. This is ये अपना का जो अभी है, I don't want to go into the detailed debate of whether अपना सही है ना गलत है. From my point of view as a journalist, हमको लगता है कि this is just distraction from by the government. हम लोग को मतलब पब्लिक को इशू हो रहा है, ये इशू के बारे में डिस्कस नहीं करता है, डिस्कस नहीं करता है. अभी कोई क्यों इसके बारे में डिस्कस नहीं करे कि नाहरलगुन का वो रास्ता इतना खराब है, वहाँ से रास्ता भी पहुँचते रहते हैं, I believe that government का काम क्या है? Governance करना. Government should focus on governance. Is it the duty of the government की कौन क्या धर्म किसी का घर में घुस गया, ये धोनी पोला मार रही है, कृष्ण मान रही है, ये गाय में खा रहा है, वो क्या government का हो? This kind of discussion फैला के stage में the typical way of distracting public which is happening and our people are also very बहुत innocent है हमारा लोग, मतलब इतना easily ये कैंपेन में फंस गया. मतलब अभी एक तो कोई उस दिन कोई स्पीच में देख रहा था कि मरेगा भी बोलते इसके लिए. अरे यार तुम अपने परिवार के लिए मरो ना, क्या ये हमरा के लिए मरेगा बोल रहा है यार. कोई बोलता है इसको इम्प्लीमेंट करने से नहीं करने से हम मर जाएगा उसके लिए, कोई बोलता है इम्प्लीमेंट करने से हम मर जाएगा. This is like religion is a personal choice. I strongly believe. And that is इसके बाद में ये जो अभी हम लोग का स्टेट में लास्ट कुछ में before this thing happened, what was the main issues? It was about head cover. It was about upswing issues. Today where it is? It was all gone in a year. कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहे. अफ्रीका अपना एक ऐसे this is ला दिया. उसी के बारे में लोग डिस्कस कर रहे हैं. सुबह शाम फेसबुक खोलो जो बोलो मतलब ना. I think this is typical BJP at work. हमको लगता है मतलब. Right. And this is my opening remark. And the rest बाद में अगर और कुछ बोलना है, इंडिजिनस स्टेट को क्यों प्रोटेक्ट करना और कैसा प्रोटेक्ट करना है, उसके बारे में I have something share. I can share later. You want my opening remark? That's my opening remark. Thank you. 1978 में अपना जरूरी था. It was at that time. We were in a different era. We were in a different time. And if I was in 1978, अगर हमको टाइम मशीन से वापस ले जाए, हम उसको साथ देना था. But in the last 47 years, much water has flown in Siang. ये हम लोग का कोमा रिवर, मेरा कोमा नदी में बहुत पानी बह चुका है. Now I think, as I said, like I don't know. I mean, like all of a sudden, I understand. I mean, like Korth का एक बारीक था, Koke Tambota, he's a friend of mine. He worked with my when my father was indigenous, वो काफी हम उसको मिला भी बात भी किया. And ये कोर्ट का जो उसको लेके if government was very sincere about things, instead of making so much of noise and having all kind of discussing dividing societies on the basis of religion, they could have just silently उसको मतलब कि जितना organizations को सबको बुला के सरिया में हेरोनी सरिया में इप्सॉप का and then उसके बाद में जो different organization है वो लोग को बुला के एक discussion कर सकता था. They didn't do it. जब हल्ला बोला जब शुरू हुआ था बोला कि अच्छा इसको भी बुलाना ये बुलाना. So there was this a section of people was made to feel that way कि ये कुछ हम लोगों को टारगेट करके कर रहा है. And I think which is wrong. I think society में इस तरह का feeling लाना वो जो initial approach that was wrong. Later on they corrected themselves. I think Honorable Chief Minister Mr. Pema Khandu Assembly में बहुत अच्छा बात बोला कि last में कि everybody will be taking the सबका बात सुनेगा उनके. I think last Assembly session में जब a lot of MLAs ने raise किया था. So that approach should have been done during initial phase. तो ये सब नहीं होता. ये जो अभी जो हल्ला गुल्ला हुआ है ना. And after जरूरी है क्या नहीं? That's debatable. Even हमको तो if you ask me in personal opinion, हमको तो नहीं लगता कि हम लोग को जरूरी है बोलते. Because
1978 में हम लोग को इसलिए जरूरी था बिकॉज दैट वाज इन डिफरेंट ऐसे कि बहुत सारी चीज को शायद हम लोग नहीं जानता था होगा एंड ओवर द ईयर अभी जैसे कि हमको हमको कल कोई बोले कि इससे देंगे आज हम कभी लाइक अफरा का बारे में इंड्यूसमेंट उसके बारे में बोले somebody comes and tells us तुम क्रिश्चियन बन जाओ मुस्लिम बन जाओ I'll give you 1000 करोड़ 2000 करोड़ हम मानेंगे हम तो नहीं मानेगा ना I don't even do that to my faith which are जो हम लोग का पूर्वज जब से फॉलो कर उसको लेकिन इसलिए ये डिबेट जो अभी अभी देखो हम लोग ये बारे में डिस्कस कर रहे हैं यूथ पार्लियामेंट सच अच्छा चीज था आज हम लोग एक्चुअली हम लोग एपीपीएससी स्कैंडल के बारे में बात कर रहे थे बारे में बात कर रहे थे दूसरे में talking about unequal distribution of wealth in the state आज कुछ लोग इतना धनी है कुछ इतना गरीब ऐसा होके बैठा हुआ है ना उसके बारे में डिस्कस नहीं कर और लोग तो रिलीजन अरे रिलीजन ये पर्सनल में हम आगे भी होता है हम मेरे घर के अंदर में जो करते हैं किसको क्यों बताएगा आजकल आप गलत तो बात नहीं तो ये मेरा अपना पसंद इसलिए मेरा अपना फेथ है इसलिए बात भी घूम रहा है इसको अदरवाइज इसको आधा देने से कोई आपको मालूम भी नहीं हो कि ये क्या फेथ फॉलो करता है तो इट्स रियली दैट वे आई थिंक दैट इज माय पॉइंट that it is not applicable in 2025. जो जो अभी जो मेरा अचानक ने जो बोला है some of the points I agree because maybe इस बार इजली मैं योकुम बना रहा था जब रिचुअल्स हो रहा था बोला है कि लोग आना है ना तो हम लोगों में इंडिजिनस फेथ फॉलोवर बहुत कम थी जाने हम तो माइनॉरिटी है मतलब कई भाइयों में तो वी वेरी फ्यू वो जो अल्टर का सामने में आके हम जो नींबू को बाहर लेके जो करता है ना तो हमको उस समय बहुत दुख लगा था ऑनेस्टली बोलने से I was just telling my wife that I literally had tears in my eyes मतलब अरे अपना ही लोग क्यों अपना रिचुअल्स को मतलब even though they may follow different ways क्यों इतना वो कर रहा हमको बहुत दुख हुआ था उस समय I feel really bad at that time and जो अभी इन्होंने कुछ एग्जांपल साइड किया I do agree with those things but still why I differ with this idea of Afra is I would like to cite some of my own personal experience also like when I vividly remember I was in class 11 ना तो मैं केंद्रीय विद्यालय में यहाँ में पढ़ता था तो मैं वेकेशन में घर में आया था तो मेरा कुछ रिलेटिव्स लोग हमको बोला था कि अरे यहाँ पे बस्ती में सब बप्तिस्म क्रिश्चियन कर रहे तुम नहीं बने क्या हम बोला I'm not sure हम बोला ना बोला and I was class 11 का बच्चा सोच के देखो उसका मतलब ये सब बात जब शेयर करनी है तो हम बोला नहीं I'm not very sure हम बोला कि अगर फ्यूचर में हमको कभी लगता है कि I have a faith in I can always अभी तो लेकिन I'm just happy what I will do उसका बाद से बेचारा मेरा रिलेटिव लोग हमको कभी तंग तो नहीं करते लेकिन ना अच्छे लगा का अलग ही एक्सपीरियंस था बट I had a sweet experience मतलब ना मेरा रिलेटिव वो लेवल का तंग तो नहीं किया so you know what why I feel that Afra may not be the answer for stopping conversion and is that he's an example उसका father Christian था family Christian था but he's not a Christian ना ये अपना choice किया है इसलिए Afra नहीं था I was asked by some people to choose Christianity. I refused. इसमें तो Afra नहीं था. I think that अगर हम अपना जो unique indigenous faith, I say हम लोग as unique है because across the world, let me finish that. Across the world, I think हम लोग का जिससे faith follow करने वाला बहुत कम लोग हैं. So उसको preserve and protect करने के लिए there are ways. And religious laws are not really necessary. Not all of the answer will be needed. हमको लगता है कि I today know so many youths, जिसका parents are like hardcore Christians, church goer, but वो लोग they are not very convinced. They बोलते हैं कि they coming back to religious faith जो हम लोग का जो generation to generation जो हम लोग का जो पूर्वज जो follow कर रहा था, they coming back. वो अफरा की वजह से तो नहीं आ रहे ना, because they have suddenly उनका अंदर में कुछ हुआ है कि some they feel that that is our way of life. वो बोल के जो वापस आ रहे हैं, तो उसको and दूसरा ये है कि हमारा यहाँ में one of the reason why रूबी सर भी तो टच किया था हम भी बोले one of the reason why indigenous faith को जो हम लोग का जो practice जो declare हुआ था it was because of priesthood जो हम लोग का जो कमी हो गया हम लोग का जो निसीम जो युग बोलता है उसका कमी कारण जो काफी हम लोग या मर गया या तो हम लोग कन्वर्ट भी हो गया so और हम लोग में क्या होता है कि like priests are like natural born unlike Hindus, the Brahmins, born Brahmin. I'm being जब हम ब्राह्मण है तो मेरा 10 जनरेशन ब्राह्मण होगा वही पूजा कर रहा होगा but हम लोग हमें तो नहीं है
I can my grandfather was a very famous Bengali, बहुत फेमस पुजारी था हमारा जगह में. हम लोग तो उसको फॉलो नहीं कर पाया. मेरे प्रवीण होता था, हम लोग होता होगा. तो हम लोग का जो वो सिस्टम को अभी जो थोड़ा चेंज करके अभी जैसा ये वो यार को जो क्या है सपा में हम लोग रांग में जो हम लोग का कदमों के सरकार ने किया है. अभी हम लोग का वया में भी किया, पीपायर में भी. एंड आई थिंक दिस इज वेयर वी नीड टू फोकस. उसको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन को अच्छे से बना के हम लोग का जो यंगर जनरेशन को कि लाइक फ्री को हम लोग वो एरे में नहीं होना चाहिए कि ये नेचुरल पावर ही हो जाए, जरूरी नहीं है. आई थिंक इफ यू वांट टू कीप आवर इंडिजिनस फेथ लाइफ, तो हम लोग को ये थोड़ा सा हम लोग अपना थोड़ा सा रिलैक्सेशन में थोड़ा ऑफकोर्स अभी हम लोग का नामना मूवमेंट का कारण से थोड़ा सा रिलैक्सेशन तो हमारा और थोड़ा हम लोग खुद को चेंजेस लाना पड़ेगा. एंड जो आपरा का कारण होता है क्या हो रहा है कि हम आई मीन व्हाट आई एम सीइंग इज रेडिकुलेशन हो रहा है. इवन आई एम सीइंग सम ऑफ माय ओन रिलेटिव्स, मेरा फ्रेंड्स लोग भी जो पहले बहुत नॉर्मल क्रिश्चियन था, आजकल हम लोग भी कुछ बोले सर तो और एक भी मतलब फायर हो जाता है, मतलब नहीं कहना लोग भी ये है वो है वो. सो there is a serious radiculation happening on both the sides. I think we cannot deny those threats, and there is very serious threat for the future of the state, for a state like Arunachal. Like यहाँ पर क्या होता है कि our people, you know, the religious politics, जो religious patterns, supremacy, वो mainland India में चलता है, and people knows things about. Some people are very mature enough to understand, but our people are very naive. हम तो बोलते हैं बहुत innocent है. So we should be very careful how we take the discussion forward. And उसमें अभी जैसे हम पहले भी बोले कि गवर्नमेंट है सिर्फ एक डिस्कशन करेगा सब ग्रुप का सब, अरे कर भी रहे हैं मेरे ख्याल से. आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे. इफ सब डिस्कशन में आके एक कंक्लूजन में आएगा कि ओके फाइन दिस इज द हाउ थिंग्स शुड बी डन. एंड आल्सो वी शुड नॉट फॉरगेट कि देयर आर चांसेस ऑफ पोटेंशियल मिसयूज ऑफ आफ्रा आल्सो. हमने देखा ये अपू आपा को किसने मिसयूज किया. कल को जिससे कि अचानक से ये अचानक का काम को अचानक लगा ये कुछ उधर उधर वाया जो मिसयूज हमको फंसा भी सकता है. इज देयर एनी प्रोविजन इन आफ्रा दैट जो मिसयूज करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा. आई थिंक वो सब के बारे में भी डिस्कशन करना जरूरी है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दैट वी आर मिसिंग जो हम लोग बहुत. दैट्स इट. Social pressure, peer pressure, anything. And also कि if AFRA is not necessary, imagine Arunachal में we were the indigenous population, तो पहले इतना religion नहीं था. It came later, right? Everybody knows that. So if there are many religion other than indigenous religion, be it Islam, be it Christianity, be it Buddhism, or कोई भी, do you think there shouldn't be any law to check the conversion rate या फिर who is converging to which religion? क्या इसका सच में कोई जरूरी नहीं है या फिर आफ्रा का अलग ऑप्शन व्हाट डू यू थिंक वुड बी? आपने जो बोला कि आफ्रा का 78 में क्यों जरूरी है, अभी क्यों नहीं. आई स्टार्ट विद दैट थिंग. व्हाई आई सेड दैट थिंग इज दैट 70s we were in different era, and in different era इसलिए हम बोले कि उस समय मे बी वी डिडंट नो. अभी जैसे हम बोले कि हमको कोई कोर्स नहीं कर सकिया बिकॉज आई एम एजुकेटेड, आई नो हमको क्या सही क्या गलत है. मे बी इन दोज एरा हम लोग के पास में हम लोग का जो मेजोरिटी पॉपुलेशन जो था उस समय वो चीज़ उनके पास वो कैपेसिटी नहीं था होगा. सो दैट टाइम पीके तुंगन सब ने सोचा कि दिस इज नीडेड टू यू नो सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ आवर इंडिजिनस फेथ या इंडिजिनस कल्चर्स वगैरह सबको तो जरूरी था सोच के उन्होंने किया. एंड आई थिंक हम अभी भी बोलते हैं कि 78 में होने से आई वुड हैव सपोर्टेड दिस थिंग. बट ओवर द लास्ट 46 years में we have changed a lot from living in jungles to we have now started using iPhone and social media prevalence. And today I think हमको तो लगता है कि with lot of confidence, because I may be wrong also, nobody is 100% correct. I have done a lot of traveling in the state. I think hearing तकसीम को जोड़ के I think almost हम हर जगह गया है. and हमको लगता है कि हम लोग का लोग अभी अवेयर है क्या सही क्या गलत है. I think 100% तो कोई भी नहीं होता. So I think वो जो forceful inducement जो होता है वो थोड़ा सा अभी नहीं होता होगा, नहीं होगा मेरा ख्याल से. हम जितना मेरा बिलीव है जो forceful conversion जो बोल रहा था. बट हाँ इमोशनल कन्वर्जन हो सकता है, जैसे अचानक ने बोला फैमिली मेम्बर से वगैरह से होता है जो सब. तो आई थिंक इसलिए हमको नहीं लगता कि आपका अभी जरूरी है बोल के, बिकॉज
हमको इसका कारण से क्या हो कि अननेसेसरी एक सोसाइटी में एक टेंशन क्रिएट हो रहा है, तो वो टेंशन को हम लोग अगर सही ढंग से डील नहीं करने से देयर विल बी इश्यूज हम लोग का विद इन अ सोसाइटी में, तो उसको कैसे डील करना है उसका ऊपर में हम लोग आई थिंक फोकस करना चाहिए। सो अभी क्योंकि डिबेट तो छिड़ ही गया ना कि बिकॉज़ पीपल आर सम सेइंग इन प्रोस अगेंस्ट, अभी अल्टीमेटली गवर्नमेंट है कि कौन क्लियर होना कि नहीं होना, बट आई थिंक अगर होने से भी एक सही ढंग से होना कि एवरी मेंबर शुड एक्सेप्ट इट, अगर नहीं होने से भी एवरी मेंबर से एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रहा बोल के एक जो डिस्कशन चल रहा है उसको आप लोग और take forward करना चाहिए। Is that this is a very serious issue, it's a very controversial and very emotive issues. आगे जाके जो भी discussion होगा, I think we need to be very careful and एक अच्छा atmosphere में discussion करना है। I think सब government has initiated a discussion इसके बारे में कि सबका राय लेके फिर उसके बाद implement करेगा बोल के, which is a good initiative. And going forward, I would like to appeal all the religious organizations. Sari Sir here and he's representing himself and ACF का कोई नहीं है, पर भी through this medium I would like to appeal कि please kindly थोड़ा सा आप लोग जो भी कुछ बात कर रहे हो थोड़ा मतलब just be careful. Young generations are watching, आप बहुत younger generation बच्चे लोग देख रहे हैं, आप इस तरह का provocative statement जो देता है काफी मतलब can send a very wrong message to the younger generation and मतलब उनका जो रॉन्ग मेथड को भी यूज कर सकता है। कोई मरेगा भी बोलता है धर्म के लिए मत बताओ, अपना माँ पिताजी परिवार के लिए मरो कोई बात नहीं, लेकिन वही है कि एंड सेकेंडली आई स्टिल बिलीव कि मेरा पर्सनल बिलीव है कि दिस इज ए डिस्ट्रैक्शन बाय गवर्नमेंट, वो हम लोग को रियल मुद्दा से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। उससे तो क्या बोले एम्प्लॉयमेंट, यहाँ में कितना लोगों को नौकरी चाहिए बोलिए, तो धर्म चाहिए ना नौकरी चाहिए आपको, देखो we all need jobs actually, this is the most important thing and we should talk about the wealth distribution. हम हमेशा बोलते हैं अभी स्पेशली लास्ट 2 decades में 20 years में अरुणाचल में कुछ लोग इतना अमीर हो गया कि हमको देख के डर लगता है, मतलब ऐसा भी हमको शहर में अमीर लोग भी हो गया क्या बोल के, बस सामान इतना गरीब। So I think we should talk about those things also. Younger generation को तो मेरा अपील है all the youths की please focus on your career and on your future and religion can come in second row, but first आप अपना future career के बारे में सोचिए and thank you organizer for such a lovely discussion.